ہاں ہلو احمد. ہاں ہاں بھائی. خیریت سے ہو نا؟ ہاں الحمد للہ. اچھا ہے وقت ہے نا بات کرنے؟ ہاں ہاں بالکل بالکل وقت ہے. ہاں لو ذرا دیکھو دوست ہیں ہمارے عمر بھائی. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد بھائی خیریت ہے؟ ہاں بھیا الحمد للہ. آپ کچھ اشکالات بتا رہے تھے تو کیا آپ کو ہاں اشکالات ہاں آ میں رہے وہی ہیں؟ پوچھ رہا تھا کہ جو بھائی آئے تھے نا ان سے پوچھ جی رہا تھا کہ میں تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا ہوں، مطلب پوچھنا پوچھ دیا میں پوچھ لوں کیا ہے غلط ہے صحیح ہے. ہاں آپ بتائیے نا، کوئی حرج نہیں، آپ اشکال بتائیے. ہاں ارے وہی بتایا تو نا جو ایک دو ہے سوال، مطلب ایک جو فضائل اعمال کے بارے میں. ہاں ہاں فضائل اعمال میں وہی احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ جو آپ بتا رہے ہاں ہاں جو وہ روز دینے آتے تھے. کہ ہاتھ باہر نکل آیا تھا، ان کو ہاں انہوں ہاتھ نے باہر چوما تھا. نکلا تھا. ہاں ہاں تو اس میں اشکالات کیا ہے؟ اس میں جو وہ تین چیزیں ہیں. ایک ہاں تو احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کو بزرگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ ایک چیز ہو گیا، اس میں اشکال ہے آپ کو. ایک ایک چیز ہو گیا. جیسے اس میں تین چیز ہے. ایک ہاں ہاں واقعہ ہونا، ایک ہاں ہوتا ہے فضائل اعمال میں وہ چیز نقل ہے، اور ایک ہاں ہے جو صاحب واقعہ ہیں جسے احمد رفاعی ہاں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہاں تین چیز ہے. تو ایک ہاں میں تین چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو واقعے میں اشکال ہے کہ یہ واقعہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا، یا یہ اشکال ہے کہ یہ واقعہ. میرا یہ کہنا ہے پوری بات سن کہ لو نا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں جی 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 پوری بات سن لو، میں پوری بات آپ اشکال تین الگ الگ چیز ہے. ایک ہے ہاں جو احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ہاں بزرگ ہستی ہیں، آپ ان کے بارے میں آپ کو اشکال ہے، یا ہاں اس کے بارے میں آپ کو اشکال نہیں ہے، اس پر اشکال ہاں ہے کہ یہ واقعہ آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، یا آپ کے نزدیک واقعہ بھی صحیح ہے لیکن یہ آپ کو اشکال ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر لائیں دنیاوی زندگی میں. یہ اشکال ہے. تینوں میں آپ کو اشکال کیا ہے؟ پہلا نمبر تو کوئی بھی بزرگ ہو ابھی جو بتا رہا ہوں میں، وہ معصوم تو ہو نہیں سکتے. وہ نہیں کوئی اللہ کے رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. ہاں معصوم نہیں ہو ہاں سکتے. آپ ہو سکتا ہے ان بالکل. سے غلطی ہو سکتا ہے اس کن سے سے غلطی غلطی گئی. ہو؟ کن سے غلطی ہو؟ ہاں ارے وہی جسے آپ بزرگ کو بتا رہے ہیں. بزرگ یہ تو مانتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں، کہ ہاں اس میں بھی ہاں شک ہے، بزرگ تو ہے، بالکل بزرگ ہے مان لو. کیونکہ ان کی لیکن بزرگی کی شہادت علامہ ذہبی، عبد القادر جیلانی اور بڑے بڑے محدثین نے دی ہے. بڑے بڑے کا مطلب جن کا حدیث پر دار و مدار ہے. وہ تو ہاں میں حوالے آپ کو دے سکتا ہوں. علامہ ذہبی نے سیار اعلام النبلا میں، علامہ سبکی نے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہادت دی ہے. علامہ شارانی، علامہ اسی طرح بے شمار، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جانتے ہیں، روح المعانی والے جو بہت بڑے مفسر ہے. تو سینکڑوں محدثین اور فقہا نے اس کی، تو ان کی ولادت میں یا ان کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے. ایک چیز یہ ہو گیا. اب ایک دوسرا چیز ہے، یہ واقعہ واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہاں اس کی سند بھی ہاں ہونا چاہیے، کس نے نقل کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے، یہ اشکال ہے ہاں آپ کو. ٹھیک ہے، ہاں اس میں تو یہ ہاں دلیل کہاں بالکل سے ہے، مطلب یہ کیسے بالکل پاسبل بالکل ہے؟ بالکل بالکل ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ دلیل پوچھ رہے ہیں. ہاں تو ایک تو یہ جو انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے، ہاں یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاوی ان کی ہے، جو دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے. اس کے جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 248 میں یہ واقعہ بالکل انہوں نے نقل کیا ہے. اور خرجت الید الشریفہ من القبر الشریف فقبلها، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی سند کس بک آپ، ہے یہ؟ ہاں بالکل، میں آپ کو جتنی میں حوالہ دوں گا اس کی اصل نہیں اس کا کتاب رائٹر میں آپ کون ہے کو بھائی؟ سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، رائٹر کون ہے بھائی اس کا رائٹر؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کا نام جانتے ہیں؟ بہت نہیں نہیں. مشہور اور بہت معتبر علماء میں سے ہے. یہ اہل حدیث حضرات اور حنفی حضرات، بریلوی حضرات سب مانتے ہیں ان کو، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی عالم کو آپ دکھا بھی سکتے ہیں یہ کتاب کے بارے میں. دوسری، یہ تو ایک ہو گیا. جتنا میں حوالہ دوں گا آپ سب کا میں اسکین آپ کو دے دوں گا. ایک ہے ارشاد المسلمین لطریقت شیخ المتقین، ٹھیک ہے، علامہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ
जो अल-मुतवफ़्फ़ा 694 हिजरी के हैं, पैदाइश उनकी 614 हिजरी की है, ठीक है। वो अपनी सनद के साथ ये वाक़या नकल करते हैं, उन्होंने सनद नकल की है, ठीक है। काना जिद्दिल इमामुल फ़क़ीह अबुल फ़रज उमर फ़ारूसी मिन हुज्जाजी जालिकल आमी कह रहे हैं अखबिरनी अबिल हाफिज मुहियुद्दीन अबू इसाक बिन इब्राहिम अन अबी से अमर अन्नहु क़ाल लहू कुन्तु मा सय्यदना, ठीक है। उन्होंने ये पूरी सनद के साथ ये वाक़या नकल किया है और ये मुतवातिर है, यानी अरब के उलमा ने भी इस वाक़ये को नकल किया है। जैसे अरब के जो मुसन्निफ़ीन हैं, आप उन्होंने तो बेशुमार उनकी सीरत पे किताब लिखा, करीब करीब सैकड़ों की किताबें, और उन्होंने वाक़ये इसको नकल किया है और ये मुतवातिर है। इसी तरह अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तनवीरुल हल्क फी रिवायत नबी वल मिल्क, इन्होंने इस वाक़ये को इसमें भी नकल किया है और बेशुमार किताबों में मिल जाएगा। वो मैं आपको सेंड कर दूंगा जो मैंने ये हवाले दिए हैं, ठीक है, सनद के साथ। और एक कौकबुद्दुरिया फी तराजिम सादती सूफिया तबक़ातुल कुबरा अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रऊफ मन्नावी जो 1021 हिजरी अल-मुतवफ़्फ़ा है, वो बड़े मुहद्दिसीन में से है, उनकी इस हदीस में किताबें भी हैं, ठीक है। उन्होंने भी ये वाक़या अपनी किताब में नकल किया। फ़ख़रजतिल यदुस शरीफ़तु मिनल क़ब्रि हत्ता क़ब्बलहा वन्नासु यंज़ुरूना, कि हाथ बाहर निकला कब्र से, यहाँ तक कि उनको उन्होंने चूमा और लोग उसको देख रहे थे, बड़ी कसीर तादाद थी। एक तो ये हो गया, लेकिन एक इसकाल आपको है कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक मुअजिज़ात के कबील से है और मुअजिज़ात को कोई भी इनकार नहीं करता है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, इस पर तो सारे मुसलमान का इत्तेफाक है। भाई ये आप जी बता रहे हैं ये चीज़, जी जी तो लेकिन ये जो आया है ये मतलब है सूरह मोमिन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कोई ना तो नबी बताते हैं, सहाबा को बता के जाती है, ऐसा होता है? चलो एक चीज हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप इस काल का। एक बात बताइए, तो दलील दे के जाता है बुखारी मुस्लिम सुनन नसाई अबू दाऊद। नहीं देखिए, सुनिए, ये हदीस की किताब नहीं है, बुखारी मुस्लिम तो हदीस की किताब है। और दूसरी जो ये जितने भी उलमा ने इनको नकल किया है सब मोतबर उलमा और मुहद्दिसीन में से है और उन्होंने किसी ने एतराज नहीं किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये उलमा का तरीका नहीं है, जब उनमें से किसी ने एतराज नहीं किया। और मुझे एक भी आलिम दे दो, कोई सैकड़ों आलिम में से, हजारों आलिम में से किसी ने एक ने भी इस वाक़ये पर एतराज नहीं किया है और सबने उसको नकल किया है और एतमाद किया है और उस पर मुतवातिर का भरोसा भी किया है और किसी एक ने एतराज नहीं किया। तो हमारा काम है जो उलमा के तरीके पे चलना, ना कि इसकाल पेश करना, ठीक है। अगर किसी आलिम ने एतराज किया होता तो चलो हमारा एतराज बजा था। जब उलमा उसको मुतवातिर सनद के साथ नकल करते हैं और बेशुमार उलमा देखने वाले हैं, ठीक है, तो हाँ कैफियत हमको किस कैफियत से क्यों हुआ वो हमको नहीं मालूम, अल्लाह जाने, ठीक है। वो अल्लाह ने किस तरह मुअजिज़ात किया है। जी बोलिए। गलती हो गई हो, उनसे गलती हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती भाई? किससे गलती हो गई? क्यों तो अरे जो इसको कहा है कि मतलब ये बता दिया, लिख दिया कि हाथ निकल गया, ये कोई अरे जनाब बेशुमार लोग आप समझ नहीं रहे, गलती एक आदमी से होती है, हाँ बेशुमार लोगों ने उसको देखा है और ये मुतवातिर है, सनद के साथ है। वहाँ गलती का क्या मतलब है? गलती तो एक आदमी से होती है। और किस उलमा ने कहा कि ये गलती है? पहली बात तो ये है, जब उन उलमा ने एतमाद किया है, अल्लामा सुयूती और अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं भाई, जिनका पाया है। दो हैं मेरे उलमा लोग बताया तो ये गलत है, सीधा सीधा गलत है। मेरे आपके उलमा ने जिसने बताया, सुने जैसे मुझसे आपने दलील मांगी, मैंने दलील दिया, कौन है पूछो। लेकिन ये तो जैसे मैंने दलील दिया, ऊपर देखो, ऊपर बोलो, सुनो ना मेरे भाई, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। जैसे आपने मुझसे दलील मांगा, मैंने 3 चीज की दलील दी कि वो मोतबर औलिया कराम में से हैं, ये मैंने आपको हवाले से बताया। और ये भी बताया कि ये बेशुमार मुहद्दिसीन ने किताबों को नकल किया और सनद के साथ भी नकल है और उस पर एतमाद किया है। मैंने दलील दिया, जिसने इतराज किया है उनसे पूछो, आपका खुद का इतराज है
या किसी और मुहद्दिसीन ने एतराज किया है, उसकी दलील ले लो आप, ठीक है। ये उसूल की बात है कि नहीं बात है। आप इनफरादी तौर पर एतराज कोई करे तो उसका एतराज क्या है, मोतबर नहीं है। हाँ, किसी फकीर ने, किसी मुहद्दिसीन ने एतराज किया, मानते हैं ना, आप ये चीज तो मानते हैं ना कि मतलब दुनिया और आलम बरज़ख के पीछे एक आड़ है, इसमें ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। अच्छा, ये बात बताइए, अगर आप ये कहते हो कि दुनिया और आखिरत में एक है, कोई जा सकता है या नहीं जा सकता, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कब्ज किया, मौत दे दी, 100 साल तक वो वैसे पड़े रहे, उसके बाद भी 100 साल के बाद उनको जिंदा किया है। अरे तो बरज़ख में वो कुरान है ना भाई, उसमें नहीं, आपने कहा कि बरज़ख में कोई जाने के बाद दुनिया में कैसे आ सकता, आपने एतराज किया, तो ये मुमकिन है कि नहीं है? मैं आपको मुमकिन दिखा रहा हूँ मेरे भाई। बात नहीं है मेरे भाई, पहले जी, हाँ बताइए। जो कुरान में है उससे हमारा पूरा ईमान है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ये मुर्दों की जिंदा करते थे, इसमें हमारा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की तो वफात ही नहीं हुई है ना, वो तो आएंगे, वो आसमान से आएंगे। ये चीज मैं नहीं कह रहा। हाँ जी, जो मुर्दा को जिंदा करते थे, जैसे ये भी बना लिए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुर्दा को जिंदा करते थे, वो जिंदा करते हैं। नहीं, हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पे नहीं आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, आपने कहा जो बरज़ख में चला जाता है वो दुनिया में आना मुमकिन नहीं है, तो मैंने कुरान की आयत पेश किया, और वो एक आयत नहीं है, 5-6 आयतों में अलग अलग लोगों का जिक्र है कि वो बरज़ख से दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया। तो ये चीज ये मुमकिन तो है, लेकिन आम नहीं है, ये खास है कि अल्लाह ताला ने, सुनिए मेरी बात, उसका तो दलील है ना भाई, हाँ, क्लियर हदीस है ना उसके। नहीं, तो ये तो नहीं, ये दलील है, ये मुमकिन है कि दुनिया में आ सकता है, ये मुमकिन तो कुरान से साबित है। उसमें हाँ, जितना उसका पूरा ईमान है हाँ, हम पे। बिल्कुल। और ये वाला जो है इस पे अच्छा, अहले हदीस की किताब मानते हैं आप? अहले हदीस की किताबों को मानते हैं? मैं अहले हदीस की किताबों में मैं बुखारी मुस्लिम यही सब मानता हूँ, बुखारी मुस्लिम, अच्छा, सुन्नन निसा, अबू दाऊद। अच्छा, अहले हदीस की किताबें नहीं मानते आप? मतलब जो है, मतलब बुजुर्गों की किताब नहीं मानता मैं, सीधी बात है। बुजुर्ग जो है वही किताब मानते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, हाँ, कोई भी अहले हदीस हो, अभी कोई भी गलती हो सकती है ना, उससे बिल्कुल गलती हो सकती है, क्यों नहीं गलती हो सकती? हाँ, हो सकता है अच्छा, गलती लिख दिया था। और जो फजाइल अमाल लिखी थी उसको भी डॉक्टर मना किया था कि मतलब कि आपके दिमाग का हालत ठीक नहीं है, तो इसी हालत में ठीक है ये मतलब क्या मना किया था? दिमाग की हालत ठीक नहीं है? हाँ, ऐसे कोई डॉक्टर क्या लिखा था? नहीं, क्या लिखा था? नहीं, गलत है, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ ना। नहीं, वो बात नहीं, वो बात ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। उसमें दिमागी हालत ठीक नहीं का मतलब थोड़ी है उसको दिमाग खराब था, वो दिमागी हालत की बात ही नहीं किए थे। किसी प्रॉब्लम, जैसे एक आदमी है, बहुत प्रेशर है काम का, तो उसको रिलैक्स चाहिए, दिमागी रिलैक्स चाहिए, तो आदमी क्या करता है, डॉक्टर बोलता है कुछ दिन ये काम रोक दो, आप दिमागी काम करना रोक दो, आप रिलैक्स करो, तफरीह में जाओ, तो वो उसको नहीं कहेंगे दिमाग खराब हो गया। तो आप भी मानते हैं कि हाँ ठीक है, एक ये चीज है, वो तो छोड़िए, आपने लिखा है वो, नहीं, वो छोड़िए, अल्लामा ज़करिया रहमतुल्लाह ने क्या लिखा वो छोड़िए, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ ना, जो लिखा था उन्होंने, कि वो अपनी तरफ से नहीं लिखा, उन्होंने हवाला भी दिया है इमाम सुयूती रहमतुल्लाह का। तो इमाम सुयूती से मैंने साबित कर दिया, और दीगर मुहद्दिसीन ने साबित किया, और ये भी कहा कि किसी मुहद्दिसीन ने आज तक उस पर एतराज नहीं किया है, तो कोई इनफरादी एतराज करे तो उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मुहद्दिसीन और फुकहा या आलिम के सामने किसी की इनफरादी राय की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। तो ये आज ये चीज समझ लीजिए, ऐसे इनफरादी राय तो हदीसों पे एतराज करते हैं भाई करने वाले, तो उसमें उनकी इनफरादी राय थोड़ी मानी जाएगी, हाँ मुहद्दिसीन के तरीके पे माना जाता है, ठीक है। वो एक और चीज है कि मतलब मैं और अल्लाह खुद सिर्क दर सिर्क है, तू मेरे में से निकला है, मैं तेरे में से निकला हूँ। क्या चीज है? एक है आप जो तू है वो मैं हूँ, मैं तेरे में से निकला हूँ, मेरे से निकला हूँ। आप मुझे स्कैन बताएंगे तो हम बताएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप स्कैन बता दीजिए, स्कैन जरा भेज दीजिए। जी, ऐसे नहीं, आप देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप एक जमा कर लीजिए स्कैन, जिस पर भी एतराज हो आपको एक स्कैन जमा कर लीजिए ओरिजिनल किताब से, और उस जिस पर आपको एतराज हो मुझे सेंड कर दीजिए कि इसका हमें जवाब चाहिए, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है।
ये अच्छा तरीका रहेगा। आप बताएंगे कुछ, स्क्रीन में कुछ रहेगा तो उसमें मजा नहीं आएगा, स्क्रीन देख के ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए एक हमारे आलिम है, दोनों बात किए थे, उसका मैं भेज दे रहा हूँ कुछ। आप किसकी आलिम, हाँ किसी आलिम से भी बात कराएंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। कौन आलिम है आपके? है अफू खान इलाहाबादी। अप्पू खान, वो कौन से मसलक के हैं जनाब? शायद अहले हदीस है। अच्छा, तो आप अहले हदीस से मुतासिर हैं। जी। ठीक है, अहले हदीस से हमारी इतनी बातें हुई हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आपको मैं अपने मुनाजरा अहले हदीस से सब दिखा दूंगा। वो अहले हदीस जो है अपने जो अमाल उनके हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक वो बता ही नहीं पाते हैं, लेकिन दावा तो बहुत रहता है कि ये हमारा अमल ऐसा कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिल्कुल कुरान हदीस के खिलाफ है। कौन सा चीज है जी, कहाँ पे, मतलब कौन सा खिलाफ रहता है? एक नहीं बेशुमार दलाइल। आप कह रहे हैं ना उनसे बात कराने को, तो जब आप उनसे बात कराएंगे तो हम उनसे डायरेक्ट ये चीज बयान करेंगे कि कुरान हदीस के खिलाफ कौन सा अमल है। आप भी सुनेंगे इंशाल्लाह, वो भी सुनेंगे, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? हाँ ठीक है भाई। ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये अहमद भाई, हाँ भाई। अभी जो आपने बताया था वाला वाकया हाथ निकलने वाला, तो उमर भाई ने इसको मुहद्दिसीन से मुफस्सिरीन से उन्होंने बहवाला आपको बता दिया वाकया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पास से नहीं लिख दिया है, उन्होंने दूसरी किताबों से नकल किया उसको। और इस पर जो है बेशुमार जो है दलाइल मौजूद हैं, किन मुहद्दिसीन ने जो है इसको अपनी किताबों के अंदर नकल किया है। फिर एक बात आप ये कह रहे थे कि हम किसी बुजुर्ग की बात को नहीं मानते हैं, हम बुखारी मुस्लिम और ये है ना आपने हदीसों नाम दिए, तो भाई ये हदीसें पहले लिखी जा चुकी है, वाकयात ये बाद के हैं, तो जो वाकया बाद में हुआ है तो हदीस में कैसे आएगा वाकया वो? तो उमर भाई ने क्या किया, उन्होंने आपको हवाले से बताया कुरान पाक से ही उज़ैर अलैहिस्सलाम का, कि जिनको जो है ना इंतकाल के बाद अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया उनको। तो हाँ, तो उन्होंने उसको हवाले से बताया उमर भाई ने कुरान पाक के अंदर, तो कतई बात साबित है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह फज़ाइल अमाल के अंदर जो वाक़या लिखा हुआ है वो वाक़या बिल्कुल सही है, और हवाले के साथ मुहद्दिसीन ने उसको नकल किया है बराबर। उमर भाई ने बताया और उन्होंने कहा कि मैं जो बात किया हूँ आपको सब किताबों की, असल किताबों की इसके अंदर दूँ। और दूसरी बात आपने जो चीज किया ना, वो जो मैं हूँ तू है, तो पहली बात था कभी अगर आपको कोई सवाल रहे ना अहमद भाई, तो जो इबारत है ना, इबारत को सही पढ़ना चाहिए। वो इबारत से जो है ना, हाँ मतलब वरना ये बहुत बड़ा इल्जाम हो जाया करता है। अभी आप जैसा बता रहे थे ना, तो मुजमित निकला, मैं मुजमित निकला हूँ, अल्लाह बा कसम खा कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं उसके अंदर। अरे मैं दे रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। अरे मेरे पास है, मैं बता दे रहा हूँ ना क्या लिखा हुआ उसके अंदर। तो आप क्या बोले कि मैं उसमें से निकला हूँ और तू मुझमें से निकला हुआ है, ऐसा बोले ना? हाँ ऐसा है ना? देखो हाँ, भाई, असल में हाँ देखो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ झूठा हूँ कुछ नहीं हूँ, तेरा ही जिल है, तेरा ही वजूद है, मैं क्या हूँ कुछ नहीं हूँ, और जो हूँ मैं हूँ वो तू है, और मैं और तू खुद सिर्क दर सिर्क है, ऐसा लिखा हुआ है। और आपने क्या कहा, तो मुझमें निकला है, मैं तुझमें निकला हूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। कभी भी अगर आप कोई एतराज रहे ना किसी चीज पर आपको, चलिए मैं बात कराता हूँ। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, तो आप जैसा भी रहेगा। ठीक है उमर भाई? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, आप अपने शेख से जरूर बात कराना, नहीं तो मुझे नंबर उनका देना, मैं बात करके आपको ऑडियो भेज दूंगा। ठीक है जनाब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो। हाँ उमर भाई। एक बहुत मुतासिर है, वो तो उधर ही चला गया। हाँ जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त बात की आपने। और उमर भाई ये रिकॉर्डिंग आप मुझे जरूर भेजिएगा, हमें भेजना है गाँव उसको। ये मैं अभी भेज देता हूँ ना उसमें। हाँ तो अपने गाँव वाले हैं ना सर, उसको सुन के इंशाल्लाह फिर आगे ना वो लोग उसकी अच्छी करा लेंगे। और ये अप्पू खान वही है क्या जो बकवास करते रहता है गुरु में? मुझे नहीं मालूम कौन है अप्पू खान। हाँ एक है अप्पू खान करके, बहुत ज्यादा वो करते रहते हैं। तो देखो तो अगर आप मैं इसके पीछे पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, और एक एक मौजूद आप इससे बात कीजिएगा ना। ठीक है इंशाल्लाह, मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सलाम। हाँ हेलो अहमद। हाँ भाई, खैरियत से हो ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है, वक्त है ना बात करने? हाँ बिल्कुल होते हैं। हाँ लो जरा, देखो दोस्त हैं हमारे उमर भाई।